Anyways, let's continue with the fourth shlok. So we have to recite it first. Vidya vivadaya dhanam madaya khalasya shakti parapidanaaya sadhostu sarvam viparitame tat jnanaya danaya cha rakshanaya. Once again I am reading it. Vidya vivadaya dhanam madaya khalasya shakti parapidanaaya sadhostu sarvam viparitame tat jnanaya danaya cha rakshanaya. So now, what is the meaning of all these words? Vidya vivadaya. Vidya means knowledge. Vivadaya means for arguments. Dhanam madaya. Money is for mother means pride. Okay. After that, mother pride, garva. Khalasya shakti. Khala means a wicked person. Shakti means the strength of wicked person is parapidanaya. Para means others, pidana means troubling others. So basically these two lines are about wicked person. बुरा इंसान जो होता है वो उसकी विद्या आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करता है, उसका धन जो है वो गर्व दिखाने के लिए यूज करता है, जताने के लिए कि एटीट्यूड दिखाने के लिए कि हाउ वेल्दी आई एम, एंड देन ये जो वीकेड इंसान है अपनी स्ट्रेंथ शक्ति को कैसे यूज करता है फॉर ट्रबलिंग अदर्स. Okay, so these two lines is showing us a behavior of a wicked person who uses his own knowledge for arguments, who uses his own money to show or to show off the wealthiness or the pride about money, and this wicked person uses his strength for troubling others. Now let's move ahead to the last two lines. Sadhostu sarvam. साधोस्तु में हियर वी हैव अ संधि. तो कल ही हमने सीखा था संधि क्या होता है. व्हाट इज संधि? संधि इज अ कंबाइंड वर्ड. जैसे हमने बहुत सारे संधि आई थिंक देखे थे, धर्मो जयति, नानृतम, नासुरः एक्सेट्रा. तो अभी यहाँ पे साधोस्तु में वी हैव टू वर्ड्स अगेन. पहला वर्ड जो है वो हमें साधु के बाद जो स आ रहा है वहां पे स्प्लिट करना है. स चेंजेस टू विसर्ग. तो साधु प्लस तू. साधोस्तु में साधु प्लस तू, ऐसे दो वर्ड्स है. तू मीन्स बट. तू का मीनिंग संस्कृत में बट होता है. ओके, एंड साधु मीन्स सेज, गुड पीपल. यहाँ पे उसका मीनिंग है गुड पीपल, गुड वन, नॉट पीपल. सिंगुलर है तो गुड पर्सन. अभी सेकंड लास्ट दो लाइन में हम देखने वाले हैं कि गुड पर्सन का बिहेवियर कैसे होता है. साधु तू, बट टू मीन्स बट. सर्वम मीन्स एवरीथिंग. विपरीतम एतत. विपरीतम मीन्स उल्टा है एकदम. सो द बिहेवियर ऑफ गुड पर्सन इज अपोजिट ऑफ विकेड पर्सन. ओके, सो विपरीतम मीन्स अपोजिट, उल्टा है बिहेवियर. कैसा है? ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय. अभी ये जो तीन वर्ड्स है इनको हमें पहले वर्ड्स के साथ कनेक्ट करना है. विद्या ऑफ मतलब नॉलेज ऑफ गुड पर्सन इज फॉर गिविंग नॉलेज, ज्ञानाय. धनम मीन्स मनी ऑफ गुड पर्सन इज फॉर डोनेशन, चैरिटी, दानाय. एंड शक्ति ऑफ गुड पर्सन इज फॉर रक्षणाय, इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स. तो अभी मैं डिफरेंट कलर्स यूज करती हूँ तो आपको समझ में आएगा. जस्ट अ मिनट. I will use red color for Vidya and Nanaya. I will use yellow color for Dhanam and Danaya. Then I will use green color for Shakti and Rakshanaya. Okay students. So क्या मीनिंग हो जाता है कि विकेड इंसान जो है अपनी विद्या आर्ग्यूमेंट्स के लिए, अपना धन प्राइड दिखाने के लिए और अपनी शक्ति दूसरों को ट्रबल करने के लिए यूज करता है. बट वही गुड पर्सन, अच्छा इंसान जो है वो अपनी विद्या ज्ञानाय मीन्स दूसरों को नॉलेज देने के लिए, देन अपना धन दानाय मीन्स चैरिटी देने के लिए, एंड अपनी शक्ति जो है वो रक्षणाय मीन्स दूसरों का प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करता है.
So in this manner, the behavior of wicked and good person is expressed here, which is opposite of each other. Is there any doubt now regarding fourth shlok? Devin, do you have any doubt? Please raise your hand if you have. You can unmute yourself, Devin. Okay, no doubts. Great. Then we'll solve some questions based on this fourth shlok. So as you can observe, the first question in fourth shlok is चतुर्थ्यंत पदानी लिखत. चतुर्थ्यंत मीन्स द वर्ड्स एंडिंग इन चतुर्थी विभक्ति. तो अभी उसके लिए पहले हमें देव के टेबल में चतुर्थी विभक्ति क्या होती है वो पता होना चाहिए. So devaya is chaturthi vibhakti. So quickly find out the words like devaya. Let me know in the chat box the words like devaya. Very good. Mehak, Shreya, correct answer. Very good. So vivadaya, then madaya, parapeedanaya, jnanaya, danaya, rakshanaya. All these words are sounds like devaya. So they are in chaturthi vibhakti. Chalo, let's find out the answer to the second question. Stamba Puranam Kuruta. I will explain it to you first and then give me oral answer. Huh? So be ready for oral answers. Yes. So first यहाँ पे है किम. किम means what? तो यहाँ पे सब objects दिए हुए हैं. विद्या, धनम and शक्ति. किमर्थम मीन्स व्हाई. कैसे यूज करते हैं ये. कौन खल कैसे यूज करता है एंड सज्जन कैसे यूज करता है. हाउ द विकेड पर्सन इज यूजिंग हिज विद्या, हिज धन एंड हिज शक्ति. ये हमें यहाँ पे लिखना है. एंड हाउ द गुड पर्सन इज यूजिंग विद्या, धनम एंड शक्ति वो हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना है. ओके, रेडी. सो यू हैव टू टेल मी लाइक आई विल टेल यू वन आंसर. खलस्य विद्या Vivadaya. Here I will write the answer Vivadaya. So in this manner you have to tell me all the answers. Yes, Shreya. Yes, ma'am. Sajjanasya vidya jnanaya. Very good. Then Khalasya dhanam. Yes, Shreya, continue. Give me all the answers. Yes, ma'am. Khalasya dhanam madaya. Sajjanasya dhanam danaya. Khalasya shakti parapidanaya. Sajjanasya shakti rakshanaya. Very good. Perfect answers. Thank you, Shreya. So students, as you can observe, पहले दो लाइंस को यूज करके श्रेया ने ये वाला कॉलम कंप्लीट किया. And using last two lines, Shreya completed the second column about Sajjanasya. Now let's move ahead. Again, a very simple question. Ekavakyena sadhoho vidya kimartham bhavati. Sadhoho means of good people. तो उनकी विद्या वो कैसे यूज करते हैं. किमर्थम मीन्स क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं. तो हमने वर्ड देखा है ज्ञानाय. तो हमें बस वही वर्ड लिखना है ज्ञानाय. उनकी विद्या जो है वो ज्ञानाय मीन्स अच्छे कामों के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए यूज करते हैं. Okay, then next question is kasya shakti parapidanaya. So yes, many of you are answering correct. कस्य के जगह पे हम लिखेंगे खलस्य. खल की शक्ति जो है वो दूसरों को परपीड़नाय मतलब दूसरों को ट्रबल करने के लिए होती है. So here we have completed shlok number 4. Let's move on to the shlok 5. Fifth shlok. Very interesting shlok. It is about a book. So
who all love readings should know this book. तैलाद्रक्षेत जलाद्रक्षेत रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्. तैलाद्रक्षेत जलाद्रक्षेत रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्. Okay, so now let's understand one word. First word तैलाद्रक्षेत is a sandhi. ओके, द चेंजेस टू त, जैसे हमने समय में भी देखा था, घड़ी सीखी थी हमने टाइम, तभी भी हमने देखा था द चेंजेस टू त, तो वैसे ही तैलात द का बनने वाला है त प्लस रक्षेत, तैलात प्लस रक्षेत इज द संधि विग्रह. तैलात प्लस रक्षेत, क्या किया, जस्ट द को क्या बनाया त, एंड वो र कहां से आया स्टूडेंट, तो र इसमें मिक्स था, द्र में यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ साउंड ऑफ र. सो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ र, तैलात प्लस रक्षेत. Okay, quickly write it down in your notebook. Okay, done. Now same like this, tell me the next संधि जलाद्रक्षेत. अभी यहाँ पे भी कैसे दो वर्ड्स रहेंगे, क्विकली बताओ चैट बॉक्स में. जलाद्रक्षेत, वेरी गुड. सो जैसे हमने यहाँ पे देखा तैलाद्रक्षेत, यस महक करेक्ट, तो हमें वैसे ही दो वर्ड्स लिखने हैं. जलात, फर्स्ट वर्ड एंड्स इन त, महक प्लीज राइट डाउन त देयर. यस श्रेया, करेक्ट स्पेलिंग. जलात प्लस रक्षेत, जैसे तैलात प्लस रक्षेत वैसे ही जलात प्लस रक्षेत. ओके स्टूडेंट्स, देन विल मूव अहेड. अभी हम इसका मीनिंग देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सब वर्ड्स के मीनिंग क्या है. पहला वर्ड था तैलात रक्षित. तैलात मीन्स फ्रॉम ऑयल, तेल बोलते हैं ना हम हिंदी और मराठी में तेल, तो वैसे ही संस्कृत में तैल. तैलात रक्षित फ्रॉम ऑयल. रक्षित मीन्स वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट बुक. कोई भी बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें ऑयल से प्रोटेक्ट करना है. तो ऑयल से प्रोटेक्ट करना है मतलब जब भी हम बुक्स लेके जाते हैं तो हमारा टिफिन भी होता है हमारे साथ, हमारे बैग में, स्कूल बैग में. तो स्कूल बैग में टिफिन में से ऑयल कभी भी लीकेज होता है, ऑयल बाहर निकलता है, तो वो ऑयल बुक्स को ना लगे इसके लिए हमें कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए. मे बी वी विल पुट दैट बुक्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्कूल बैग, और हम उसके लिए कोई प्लास्टिक रैपर कैरी करेंगे फॉर टिफिन और एल्स फॉर बुक्स एक्सेट्रा. तो ये सब हमें कैरी करना है. या फिर वी शुड कैरी, यस महक राइट, डिफरेंट लंच बॉक्स वी शुड कैरी रादर देन कीपिंग आवर लंच बॉक्स इन स्कूल बैग. तो ये सब सिचुएशंस में हमें अच्छे से बुक को प्रोटेक्ट करना है. कोई भी बुक, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स बट आपके स्टोरी बुक्स हो, कॉमिक्स हो, या फिर जो भी बुक्स आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगता है. तो whenever you are using any book, please respect that book and protect it from oil. Also protect it from jalam. Jalam means पानी, वाटर. सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर. कैसा, कौन सा वाटर, रेन वाटर ऑफ कोर्स, या फिर अपना वाटर बॉटल का पानी. तो उससे प्रोटेक्ट करना. वो जो आपका टेक्स्ट बुक है वो भीगना नहीं चाहिए. एंड देन नेक्स्ट है शिथिल बंधनात्. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शिथिल बंधनात्. शिथिल मीन्स लूज एंड बंधन मीन्स बाइंडिंग. तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लूज बाइंडिंग. हमें पता है कभी कभी टेक्स्ट बुक जो होता है या मैथ साइंस के स्पेशली जो जब
कुछ थिक होते हैं तो उनकी बाइंडिंग जो है वो इजीली लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ मोर पेजेस। तो ऐसे टेक्स्ट बुक या फिर हमारे पास कोई डिक्शनरी होती है तो वो भी कभी कभी लूज हो जाती है बिकॉज मेनी पेजेस आर देयर। तो आफ्टर यूजिंग सेम डिक्शनरी और सेम टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन इट बिकम्स लूज। तो वो लूज बाइंडिंग हो रही है तो उसको कुछ सेलो टेप से या सिलाई करके अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करो, या फिर पहले से ही उसको कवर या जो भी प्रिकॉशनरी पार्ट्स आते हैं वो सब यूज करो। प्लीज रिस्पेक्ट बुक, ऐसे पोएट हमें बार बार बोल रहे हैं। देन ये तो तीन चीजें हुई, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑयल, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लूज बाइंडिंग। आफ्टर दैट मूर्ख हस्ते न दातव्यम। मूर्ख मतलब फूल पर्सन, हस्ते मीन्स इन हैंड्स ऑफ फूल पर्सन, न दातव्यम यू शुड नॉट गिव दिस बुक इनटू द हैंड्स ऑफ फूल पर्सन। जो इंसान बिल्कुल भी बुक्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसके हाथ में हमें ये बुक नहीं देना है। ओके क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, हमें पता है कि हम देखते हैं कि भेल बनाने के बाद भेल सर्व करने के लिए बुक्स के पेजेस यूज कर रहे हैं, या फिर बुक्स के पेजेस यूज करके प्लेन्स बना रहे हैं, ऐसे भी है। तो ये सब जो फूल्स है who do not respect at all about books, उनके हाथ में अपना बुक कभी भी ना देना। एवं वदति पुस्तकम, पुस्तकम मीन्स बुक, बुक itself is saying all these things कि मुझे ऑयल से प्रोटेक्ट करो, मुझे पानी से प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम अ लूज बाइंडिंग एंड प्लीज डोंट गिव मी टू द हैंड्स ऑफ फूल। ओके सो इन दिस मैनर वी हैव अ फिफ्थ श्लोक जहां पे हमें अभी फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स एंडिंग इन पंचमी विभक्ति। सो जैसे कि वर्ड्स एंडिंग इन पंचमी विभक्ति वी हैव टू फाइंड आउट लाइक देवात, ये होता है देवात इज फ्रॉम पंचमी विभक्ति। तो ऐसे ही पंचमी विभक्ति के वर्ड्स हमने कौन कौन से देखे, तो हमने एक वर्ड यहाँ पे देखा और एक वर्ड यहाँ पे देखा, तैलात एंड जलात, एंड वन मोर वर्ड इज शिथिल बंधनात। यस यू आर आंसरिंग करेक्ट। So three words are there of Panchami Vibhakti, Tailat, then Jalat, and then Shithila Bandhana. Okay. Okay, let's continue to the next part. Narasyaabharanam Rupam, Rupasyaabharanam Gunah, Gunasyaabharanam Jnanam, Jnanasyaabharanam Kshama. अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिय वाले वर्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं बिकॉज हमारा षष्ठी विभक्ति का वर्ड क्या है, देवस्य। रस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम एंड ज्ञानस्याभरणम क्षमा। क्विकली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। पहला वर्ड जो है नरस्याभरणम, इसमें हमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, नरस्य प्लस आभरणम। वैसे ही रूपस्याभरणम में रूपस्य प्लस आभरणम, गुणस्याभरणम में गुणस्य प्लस आभरणम एंड ज्ञानस्याभरणम में ज्ञानस्य प्लस आभरणम। The word which is repeating again and again is abharanam. Abharanam means ornaments. Okay. So एक word I am writing here. Please copy it in your notebook and others you have to write. Narasya plus abharanam. तो ये स्य वाले वर्ड्स के साथ हर बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है। आभरणम मीन्स ऑर्नामेंट, एक वचन है आभरणम, ऑर्नामेंट, एन ऑर्नामेंट। अलंकार, गहना। ओके चलो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नरस्य। नरस्य मीन्स ऑफ पर्सन, ऑफ मैन। नर इज मैन, ऑफ मैन। तो इंसान का गहना क्या है, what is an ornament for man? It is rupam. Rupam is the outer beauty as well as inner beauty. Okay, so the presence of all of us is first ornament of man. Then next, रूपस्य आभरणम। अभी रूप तो है, ब्यूटी तो है हमारे पास, प्रेजेंस है। अभी ये प्रेजेंस का आभरणम, नो महक, you have writing wrong spelling. See, the spelling is रूपस्य plus आभरणम.
ओके यस, तो रूपस्य मीन्स ऑफ ब्यूटी, आभरणम मीन्स ऑर्नामेंट, और ब्यूटी इज एडॉर्न बाय, ब्यूटी को हम कैसे सजा सकते हैं, अच्छा लुक तो है बट उसके साथ अगर गुण मीन्स अच्छी वर्च्यूज, अच्छे क्वालिटीज भी अगर हमें हो तो हम हमारी पर्सनालिटी और बेहतरीन लगती है। इसीलिए सबसे पहले बोला है कि मैन शुड हैव ऑर्नामेंट ऑफ ब्यूटी, आफ्टर दैट ब्यूटी शुड हैव ऑर्नामेंट ऑफ गुण मीन्स वर्च्यूज क्वालिटीज, देन गुण, अभी गुण भी है वर्च्यूज भी है, देन वी हैव टू एडॉर्न, और हमें वो वर्च्यूज को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं इफ वी हैव ज्ञान, मतलब नॉलेज भी है, अच्छा बिहेवियर है हमारे पास, बट हम थोड़ा पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यस पढ़ाई लिखाई भी आती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज भी हमारी डेवलप होने वाली है। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज ज्ञानस्याभरणम क्षमा, ज्ञानस्य तो अभी नॉलेज भी है, देन ऑर्नामेंट ऑफ नॉलेज इज क्षमा, क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस। So though we have a knowledge, we should have a modest behavior. Hence, यहाँ पे लिखा हुआ है कि the ornament of man is beauty. The ornament of beauty is virtue or qualities. An ornament of virtues is knowledge, and an ornament of knowledge is forgiveness. ये जो वर्ड है आभरणम, उसको ऑर्नामेंट भी बोल सकते हो या फिर एडॉर्न्ड बाय ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, अभी हम आगे चलते हैं टू द 7th श्लोका। व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति, विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति, विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, नो कंबाइंड वर्ड्स हियर, so quickly understand the meaning. व्यसने means in calamity, मित्र परीक्षा, परीक्षा मतलब tell me, test, exam, correct. So test of mitra means friend is in calamity, so friend in need is a friend indeed, सुना ही रहेगा। तो सेम यहाँ पे बोला है कि मित्र की परीक्षा व्यसने यानी कि कलामिटी के टाइम पे होती है। शूर की परीक्षा रणांगणे भवती, रणांगणे मीन्स ऑन द बैटल फील्ड। विनय भृत्य परीक्षा, विनय मतलब मॉडेस्टी नम्रता, उसकी परीक्षा सॉरी भृत्य की परीक्षा कैसे होती है, विनय से होती है, विनय से मतलब मॉडेस्टी से, भृत्य मतलब सर्वेंट। एंड दान परीक्षा, दान मीन्स चैरिटी डोनेशन, इससे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे मतलब ऐसा टाइम जब बहुत कुछ स्केर्सिटी हमें हो रही है, जैसे कि स्केर्सिटी ऑफ फूड, स्केर्सिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। सो फमाइन का जो टाइम होता है, दुष्काल जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे टाइम में दान परीक्षा की जाती है, मतलब डोनेशन की कितने गुण हम में है वो यहाँ पे समझ में आता है एट द टाइम ऑफ फेमाइन और एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड और वाटर। तो सिंपली क्या क्या दिया हुआ है देखो, द टेस्ट ऑफ फ्रेंड इज इन कलामिटी, द टेस्ट ऑफ शूर मीन्स ब्रेव इज ऑन द बैटल फील्ड, द टेस्ट ऑफ सर्वेंट इज with the modesty, the test of charity is done in durbiksha means famine or the period of scarcity of food. तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, then also we are ready to give or share which we have, then it is a great thing, and that is the virtue or quality of donation or charity. Okay, is there any doubt regarding 7th shlok? Quickly add your queries in chat box.
Very good. Then we'll move ahead to the next shloka. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आदिदेव ये जो वर्ड है इट इज यूज्ड फॉर सन, सूर्य के लिए ये वर्ड यूज किया है। नमः तुभ्यम, हियर वी हैव संधि नमः प्लस तुभ्यम, स चेंजेस टू विसर्ग, नमः प्लस तुभ्यम। ओके, नमः प्लस तुभ्यम। सो आदिदेव इज अ संबोधनम। हम यहाँ पे पोएट जो है वो सूर्य को निर्देश कर रहा है। ही इज एड्रेसिंग लॉर्ड सन and he is saying Adideva, O Adideva is name of sun. O Adideva, Namastubhyam, salutations to you. Prasida mama bhaskaram, prasida यानी कि bless me, give me blessings. मम भास्कर मतलब ओ, again a name of sun. O Bhaskara, give me blessings. Divakara, again a name, third name of Surya. O Divakara, Namastubhyam, salutations to you. O Prabhakara, Namostute. Again, Namostute is also Namaha plus Astu. So salutations to you. Namostute में दो words क्या है? Quickly write it down. Namaha plus Astu. कैसे फाइंड आउट करना है वो? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है O and S दिख रहा है, ये S का साइन दिख रहा है वहां पे। O changes to two dots, O changes to अह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नमो का बन गया है नमः, नमो का बन गया है नमः, एंड S changes to अ, S का बन जाता है अ। सो नमः प्लस अस्तु, नमोस, नमोस्तु, नमः प्लस अस्तु। तो सिंपली ये श्लोक का मीनिंग क्या है? ओ आदिदेव, सैल्यूटेशंस टू यू। ओ भास्कर, गिव मी ब्लेसिंग्स। ओ दिवाकर, सैल्यूटेशंस टू यू। ओ प्रभाकर, सैल्यूटेशंस टू यू। तो बार बार बस प्रे किया है टू द लॉर्ड सन। सीखना क्या है हमें यहाँ पे? संबोधन। संबोधन के कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं? आदिदेव, भास्कर, दिवाकर एंड प्रभाकर। जस्ट लाइक देव, जैसे हम कहते हैं ना हे देव, वैसे ही हे आदिदेव, हे भास्कर, हे दिवाकर एंड हे प्रभाकर एक्सेट्रा। Okay, so we have completed 8th shloka and we have now last shloka. Let's recite the last shloka. Yes, Vedika, you have to learn all the shlokas for your exam. So last shloka is Ramo Rajamani Sada Vijayate Ramam Ramesham Bhaje Ramena Nishachara Chamu Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Parayanam Parataram Ramasya Dasosmyaham Rame Chittalaya Sada Bhavatu Me Bho Rama Mamuddhara. Little bit big shlok, but it is very known shlok which is from Ramaraksha. रामरक्षा प्रेयर जो है, स्तोत्र जो है, उसमें से ये श्लोक लिया हुआ है। आई विल रिसाइट इट वंस अगेन। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम वर्ड के हर एक विभक्ति के फॉर्म्स है। फर्स्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो रामो, रामो में ओ चेंजेस टू अह करना है, सो इट विल बिकम रामह। इट इज अ फर्स्ट फॉर्म लाइक देवह।
तो यहाँ पे इसलिए इसको बोल्ड में हाईलाइट किया है। सेकेंड रामम, इट इज लाइक देवम, देवम के जैसे है रामम, द्वितीय का फॉर्म। देन रामेणा, इट इज लाइक रामेण, इट इज लाइक देवेन, रामेण इज लाइक देवेन, तृतीया विभक्ति। देन रामाय इज लाइक देवाय, चतुर्थी विभक्ति। ओके, देन नेक्स्ट है रामात, दैट नो चेंजेस टू त, सो इसीलिए रामात इज सेम एज देवात विच इज पंचमी विभक्ति। देन रामस्य इज षष्ठी विभक्ति, रामे is saptami vibhakti, and bho rama is sambodhanam. So all the vibhaktis are covered in this shloka, beautifully composed shlok that covers all the vibhaktis. Okay, so let's understand some sandhis from here, so it will be easier for us. Then first sandhi is ramo rajamanihi, रामो राजमणि में दो वर्ड्स पहले से सेपरेट है, सो हमारा आंसर होगा रामः प्लस राजमणि ही। ओके, नेक्स्ट है रामेणाभिहता, तो रामेण प्लस अभिहता, क्विकली राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट संधि, रामेण प्लस अभिहता। चलो नेक्स्ट, आई होप यू हैव रिटन इट। नेक्स्ट है रामान नास्ति, सो रामात प्लस न प्लस अस्ति। यहाँ पे जो डबल न है, इन दैट फर्स्ट न चेंजेस टू त, फर्स्ट न चेंजेस टू त, सो रामात प्लस न प्लस अस्ति। यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल न, इन डबल न ऑलवेज फर्स्ट न चेंजेस टू त, सो रामात प्लस न प्लस अस्ति। द नेक्स्ट संधि है दासोस्म्यहम, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था नमोस्तुते, ओ चेंजेस टू अह, एस चेंजेस टू अ, वैसे ही दासोस्म्यहम में हमें दासों को बनाना है दासह, लिटिल बिट लाइक मैथ। तो मैथ में हमें पता है एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमें अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो वैसे ही एक ही ओएस संधि के जैसे हमें अलग अलग संधि दिख रहे हैं। So dasah plus a becomes s becomes a. So my next word is asmi. Asmi. अब ये अस्मी कैसे बना, तो य changes to e. The rule is y changes to e. And then final last word here is aham. So total 3 words are there in this word. Dasah plus asmi plus aham. ये सब कुछ आपको So now let's focus on the meaning. तो मीनिंग क्या है ये पर्टिकुलर श्लोक का। लॉर्ड राम जो है उनके बारे में ये श्लोक है। सबसे पहला दिया हुआ है रामः राजमणिः, राजमणिः मीन्स ज्वेल इन अमंग ऑल द किंग्स, ज्वेल अमंग ऑल द किंग्स। तो राम कैसे है, ही इज ज्वेल अमंग ऑल द किंग्स। सदा विजयते मीन्स ऑलवेज विन्स, राम हु इज ज्वेल अमंग ऑल द किंग्स ऑलवेज विन्स। रामम रमेशम भजे, मतलब रामम रमेशम भजे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। भजे मीन्स वर्शिप,
I worship Lord Ram. I worship Lord Ram. But what about that Ramesha? Ramesha means the husband of goddess Rama. Of course, Rama means यहाँ पे सीता. तो जो सीता के पति है या रमा के पति है, हमें पता है रमा जो है वो वर्ड लक्ष्मी के लिए भी यूज किया जाता है. तो लक्ष्मी के पति विष्णु जी, उनका ही एक अवतार राम है, इसीलिए यहाँ पे रमेश वर्ड यूज किया गया है. तो मीनिंग क्या हो गया ये 3 वर्ड्स का, रामम रमेशम भजे का? आई वर्शिप लॉर्ड राम हु इज हस्बैंड ऑफ गॉडेस रमा. नेक्स्ट लाइन, रामेण अभिहता निशाचर चमू. सो निशाचर चमू, chamu means group, nishachara means demons, rakshas, army of demons. Abhihata means destroyed. Rama destroyed the army of demons. Okay, the army of demons was destroyed by King Ram. Now next, Ramaya Tasmai Namaha. बहुत ही simple. Namaha means salutation. Salutations to that Ram who has destroyed the army of Rakshas, of demons. Okay, Ramat न अस्ति परायणम परतरम. So परायणम परतरम का मीनिंग है यहाँ पे रिजॉर्ट, फाइनल रिजॉर्ट. मतलब देयर इज नो फाइनल रिजॉर्ट बेटर देन राम. ऐसा और कोई भी गॉड पोएट को नहीं लगता है कि जहाँ पे वो आश्रय ले सकता है, जिसकी चरणों में वो झुक सकता है. So resorting to the Rama is better for poet because poet likes God Ram. Hence poet is saying there is no better final resort than resorting to the feet of Lord Ram. Finally poet is saying रामस्य दासः अस्मि अहम. दासः means servant. हमने ये word भी first lesson में देखा था. So I am a servant of Ram. Okay. After that last line, Rame chittalayah sada bhavatu me. Me means in my. Chittalaya means mind, in my mind. Sada means always. Bhavatu means be there. So let Ram is always there in my mind. मेरे मन में हमेशा राम रहे. And Bho Rama Mamuddhara. Finally, poet is praying to Lord Rama in the last some words. O Rama, uplift me. Mam Uddhara, Mam means me. Uddhara means uplift. So, O Rama, uplift me. Uplift me मतलब मेरा प्रोग्रेस करो. मुझे प्रगति के मार्ग पर जाने के लिए, मेहनत करने के लिए शक्ति दो, बुद्धि दो. ऐसे जो हम प्रे करते हैं वैसे ही प्रे किया हुआ है. So uplift me, O Ram. Okay, so this is very important shlok. I will tell you the meaning once again. Lord Rama is jewel among all the kings who wins always. I worship that Lord Ram who is husband of goddess Rama. The army of demons was destroyed by Ram. Salutations to that Ram. There is no other final resort better than Ram. I am a servant of Ram. Let that Ram always be there in my mind. O Ram, uplift me from all the troubles. Okay, so is there any doubt regarding Vibhakti Mala, regarding meaning of Vibhakti Mala? Quickly tell me. Okay, so now let's come to the recitation part of Vibhakti Mala. As we know, we have only recited 3 shlokas yesterday, but we have to complete or practice the recitation of other shlokas. So now we will start orals of each and every shlok. Be ready. I will recite one shlok, then you have to recite it.
विद्या विवादाय धनं मदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. Yes, who will recite it? Fourth श्लोक. Yes, Shreya. Yes, ma'am. विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्तिः परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. Very good. Yes, then next श्लोक. तैलाद्रक्षेत् जलाद्रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्. तैलाद्रक्षेत् जलाद्रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्. Yes, Krishna, unmute yourself. I'm gonna start. Yes. तलाद रक्षेद जलाद रक्षेद रक्षेद शिथिल बंधनात् मूर्खो हसते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम्. Very nice. चलो नेक्स्ट श्लोक. ज्ञानस् नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा. Yes, Vedika, try to recite it. Yes, ma'am. नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा. Very good. Correct. Next श्लोक. व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे. व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे. Yes, Mehak, can you just recite this श्लोक? Yes, ma'am. व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति विनय भूत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे. Very nice. नेक्स्ट श्लोक. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते. Yes, who will recite it? Yes, Sanskruti, unmute yourself. Yes, Shreyas. Riya. Yes, Shreya. Yes, ma'am. Adi Deva Namastubhyam Prasid Mama Bhaskar Divakar Namastubhyam Prabhakar Namostute. वेरी गुड. अब सिर्फ वो जो वर्ड्स है ना भास्कर एंड दिवाकर फिर से एक बार रिसाइट करो. यस श्रेया. भास्कर और दिवाकर. वेरी गुड. अभी करेक्ट बोला. थैंक यू. ऑलवेज रिसाइट इट लाइक भास्कर र कंप्लीट दिवाकर नॉट भास्कर दिवाकर भास्कर दिवाकर. Okay, and then last and very important श्लोक. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. Yes, who will recite it? Yes, Vedika.
Yes, ma'am. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणा भिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सम्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुदर. Very good, perfect. Okay, students, so in this manner you have to by heart Vibhakti Mala, you have to solve question answers as well as you have to learn translation if your school is saying so to learn translation. Okay, now we'll move ahead to some important questions. अभी आपको ये पता है कि पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी के फॉर्म्स क्या है? We have already discussed. Let's complete the जाल रेखा चित्रम. So यहाँ पे श्लोक नंबर 5 के ऊपर जाल रेखा चित्र है पुस्तकस्य रक्षणम. पुस्तक का रक्षण कैसे कैसे करना है? एक तो फ्रॉम द हैंड्स ऑफ फूल्स, मूर्ख हस्ताक्षर. और क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें पुस्तक को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है? वेरी गुड. फर्स्ट इज जलात. करेक्ट, तो यहाँ पे जलात. देन नेक्स्ट इज तैलात. वेरी गुड. फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम वाटर. एंड वन मोर इज विथ दैट तो एट द एंड. यस, करेक्ट. शिथिल बंधनात्. सो तैलात, जलात, शिथिल बंधनात्. These are the three answers for पुस्तक रक्षणम. Now next, जाल रेखा चित्र for 6th श्लोक. आभरणम. Abharanam means ornament. What is an ornament? What is an ornament for Nara, man? We have to write down here. Narasya abharanam रूपम. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रूपम. रूपस्य आभरणम गुणः. So we will write it गुणः. गुणस्य आभरणम ज्ञानम. So we will write here ज्ञानम. And ज्ञानस्य आभरणम is क्षमा. So we will write it here क्षमा. तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएंगे रूपम, गुणः, ज्ञानम, क्षमा. रूपम, गुणः, ज्ञानम, क्षमा. Then we have 7th श्लोक. Again 7th श्लोक में सप्तमी के फॉर्म्स पूछे हैं, तो we have to find out forms like देवे. तो व्यसने, दाने, दुर्भिक्षे, ऐसे वर्ड्स को हम सप्तमी के पद यानी कि वर्ड्स एंडिंग इन सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे. What about next question? Let's understand it. Stambha Puranam Kuruta. Kasya means whose. किसकी परीक्षा and kada means कब होती है. So by observing the shloka, who will tell me all the answers orally? मित्र की परीक्षा कब होती है, शूर की कब होती है, भृत्य की कब होती है, दान की कब होती है. यहाँ पे जितने भी आंसर्स आने वाले उसके ऊपर हमें मात्रा देना है. ये श्रेया, quickly tell me the answer. Yes, ma'am. मित्रस्य परीक्षा समये, शूरस्य परीक्षा रणांगणे, भृतस्य परीक्षा विनये, दानस्य परीक्षा दुर्भिक्षे. Yes, very nice. All answers are correct. Then last abhi 8th shloka. Sambodhananta padani. So we have already discussed संबोधन मतलब सब सूर्य के नाम. सूर्य इत्यस्य शब्दस्य कृते अमर पंक्ति, ये हम बाद में देखेंगे बिकॉज अमर कोश का पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है. देन राम इति शब्दस्य का विभक्ति ही वाक्य प्रयुक्ता इति लिखत. राम ये शब्द की कौन सी विभक्ति वाक्य में यूज की गई है वो आपको लिखना है. तो if you have heard the shloka and the explanation carefully, then you can easily answer it. So yes, quickly tell me in a chat box. रामः सदा विजयते. इसमें रामः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी कौन सी विभक्ति है? रामः sounds like देवः. Very good. It is prathama vibhakti. Then Ramam is dvitiya vibhakti like Devam. Ramena like Devena, tritiya vibhakti. Ramaya like Devaya, chaturthi vibhakti. Same. Continue abhi. Ramat is panchami, Ramaste shashti, Rame is saptami, and Rama is He Rama or Bho Rama is
Yes, 8th vibhakti, which is Sambodhanam vibhakti. So here we have completed our 9th lesson, that is Vibhakti Mala. So is there any doubt regarding Vibhakti Mala? Quickly ask me in the chat box. Okay, have you understood each and every shlok? बहुत सारे नए वर्ड्स है and again I am saying you don't take attention about sandhis. Just focus on new words and the question answers. As you will learn some more poems and some more lessons, you will be familiar with sandhis easily. I'm not getting you, Devin. What are you saying? Okay, fine. This is a उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. मीन्स हमें फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करना है. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हमें सेकेंड पर्सन के लिए यूज करना है. एंड हम देखा रहेगा थर्ड सर्वनाम विच इज तत् सर्वनाम विच वी हैव टू यूज फॉर थर्ड पर्सन. बट इन संस्कृत वी कॉल्ड इट एज प्रथमः पुरुषः. So I will recite this sarvanam now. सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान् द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी. For स्त्रीलिंगम it is सा ते ताः प्रथमा, ताम ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी. And for नपुंसकलिंगम it is तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी. Now students, here you have to observe that ये दो लाइंस जो है येलो कलर में, that is different for न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंगम. अदरवाइज फ्रॉम तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक this sarvanam table is same as pullingam sarvanam table. This sarvanam table in neuter gender is same as masculine genders table from tritiya vibhakti till saptami vibhakti. Is there any doubt regarding the table now? So Nibandha will be there in semester 2, but let's start it today itself. Nibandha is essay, we know, and it is a type of writing skills. So, but in 8th standard, you are learning Sanskrit as first time. It is for first time. So, it will be not a big essay. It is only a short essay. And also good news is the essay will be given itself. You have to just complete that essay using the words given in a bracket. तो देखते हैं वो वर्ड्स कैसे कैसे हमें यूज करने हैं. तो सबसे पहले सिंपल ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है विच इज ऑफ श्री गणेश. Yes, so essays of Shri Ganesha. I will give you some hints and you have to answer it. Shri Ganesha dash devata. Shri Ganesh is गॉड ऑफ डैश धन या विद्या. विद्या मतलब नॉलेज एंड धन मतलब मनी. तो कौन सा आंसर आप चॉइस करोगे? क्विकली टेल मी फर्स्ट और सेकंड. वेरी गुड देवेन, श्रेया, महक. करेक्ट आंसर बाय ऑल ऑफ यू. द आंसर इज विद्यायाः. सो श्री गणेश विद्यायाः देवता. लॉर्ड गणपति इज गॉड ऑफ नॉलेज. Yes, Riya, correct answer. Then next, Shri Ganesha बुद्धिम dash यच्छन्ति और यच्छति. अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है? Whether this word Shri Ganesha is
एकवचन और बहुवचन. Very good. Yes, Shreya Devan, you are answering correct. We have to use this second word yachati because Shri Ganesh is singular person. So Shri Ganesh buddhim yachati. अगर यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स के नाम होते like देवाहा, then we will use yachanti. देवाहा buddhim yachanti, but Shri Ganesha is singular, hence it is buddhim yachati. Okay, let's move ahead. Shri Ganeshasya dash Shankarah. Shankar is name of Mata or Pita? Yes, Pita. Very good, Mehak, Riya. Yes, Deven, correct answer. So Shri Ganeshasya Pita Shankarah. Okay, after that next. Kartikeyah asya bhrata asti or nasti? कार्तिकेय उसका भ्राता था कि नहीं, सुना है कि नहीं उसके बारे में? यस, अस्ति. सो कार्तिकेयः अस्य भ्राता अस्ति. भ्राता मीन्स ब्रदर. ये हमने देखा था मम परिचय में. डू यू रिमेम्बर द वर्ड भ्राता? इट इज ब्रदर. एंड व्हाट इज द वर्ड फॉर सिस्टर? क्विकली टेल मी इन चैट बॉक्स. Very good, Mehak. The word is bhagini. Okay, now let's move ahead. Yes, Shreya, Mehak, correct answer. Bhagini is the word for sister. Then Shri Ganeshasya और Shri Ganeshaya मोदकाः रोचन्ते. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे श्री गणेशाय. श्री गणेशाय. श्री गणेशस्य का मीनिंग हमने देव के टेबल में देखा था ऑफ. तो हमें वहां पे ऑफ मीनिंग यूज नहीं करना है. यहाँ पे हमें मीनिंग यूज करना है श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद है, तो इसीलिए श्री गणेशाय. देन डैश नमः. अगेन हमें क्या यूज करना है? श्री गणेशाय नमः. हमने बहुत बार ये सुना हुआ है वर्ड श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, देवाय नमः. संस्कृत सीखने से पहले भी हमने ये वर्ड्स टेम्पल्स में देखे हैं. तो श्री गणेशाय नमः. विथ नमः ऑलवेज यूज चतुर्थी विभक्ति. विथ नमः ऑलवेज यूज चतुर्थी विभक्ति. ओके, लेट्स मूव अहेड. मम शाला. नेक्स्ट इज मम शाला. सरस्वती विद्यालयः इति डैश शाला. मेरी, माय. इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मम. वेरी गुड. हमने ये मम परिचय में देखा था. मम परिचय, माय इंट्रोडक्शन. सो इसीलिए सरस्वती विद्यालय इति मम शाला. इट इज माय स्कूल. अहम अष्टमी कक्षायाम. अहम के साथ क्या यूज होता है? टी और मी. डू यू रिमेम्बर दैट फिफ्थ लेसन? अहम वदामी, अहम पठामी, अहम हसामी. यस, सो आवर आंसर विल बी पठामी. अहम अष्टमी कक्षायाम पठामी. देन मम शाला, माय स्कूल डैश अस्ति. माय स्कूल इज इन सिटी. एक शहर में है, तो इन ऑन एट के लिए वी यूज दिस वर्ड नगरे, सप्तमी विभक्ति वाला. सो मम शाला नगरे अस्ति. नगरात मतलब फ्रॉम सिटी. माय स्कूल इज फ्रॉम सिटी? नो, माय स्कूल इज इन द सिटी. सो इन द सिटी के लिए द करेक्ट आंसर इज नगरे. देन मम शालायां बहूनि पुस्तकानि विद्यन्ते. तो यहाँ पे अभी विद्यन्ते इज द आंसर. यस, यू आर आंसरिंग करेक्ट. व्हाई विद्यन्ते? बिकॉज बहुनी पुस्तकानि, मेनी बुक्स आर देयर. अगर पुस्तक कम होता देन वी विल यूज विद्यते, बट देयर आर बुक्स, मेनी बुक्स, सो विद्यन्ते. चलो देन नेक्स्ट. सर्वे डैश अध्ययन प्रियाः सन्ति. अब ये जो वर्ड सर्वे है वही हमें आंसर बता देता है. सर्वे मतलब सब, तो सबके साथ हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? यस, बहुवचन वाला. छात्राः, ऑल स्टूडेंट्स. छात्रा नाम नहीं यूज करेंगे बिकॉज इट इज षष्ठी विभक्ति. ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑफ नहीं चाहिए हमें, प्रथमा चाहिए. तो सर्वे छात्राः अध्ययन प्रियाः सन्ति. ओके. डैश पाठशाला अतीव रोचते. जैसे हमने यहाँ पे देखा था रोचते के साथ हमने चतुर्थी विभक्ति यूज की थी, वैसे ही रोचते के साथ हम अस्मत् सर्वनाम की चतुर्थी विभक्ति यूज करेंगे. मह्यम. मह्यम. Okay, we will move ahead and we will see one more nibandha today. Yes, so that third nibandha is Mayuraha. Very simple nibandha. Mayuraha means peacock. So Varsha Kale Mayuraha dash. Nrutyami or Nrutyati?
Wow, students, you are answering correct. The answer will be nrutyati because it is a third person. अगर वहां पे अहम होता then अहम नृत्यामि, अहम आवाम जो वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के लिए, so अहम नृत्यामि, अहम वदामि, अहम खादामि, but for mayurah it is nrutyati. Then varsha kale means at the time of rainy season. तस्य नृत्यम, मयूर का नृत्य मीन्स डांस, अतीव डैश वर्तते. अभी रमणीय मतलब एंटरटेनिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग है. एंड तापकारकम मतलब बहुत ही खराब होता है, वर्स्ट. तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यस, रमणीयम. एंटरटेनिंग डांस होता है हमेशा, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली पीकॉक डांस. देन जलपूर्णम मेघम डैश दृष्टवा सह नृत्यति. जलपूर्ण मेघ, द क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर. कहाँ पे होते हैं? इन स्काई. तो इन स्काई के लिए कौन सा वर्ड है? आकाशे. वेरी गुड. आकाशे दृष्टवा सह नृत्यति. महक, द आंसर इज आकाशे. So looking at the clouds full of water, that peacock dances. कहाँ पे है clouds? In sky. Then सह, peacock is शारदा देव्याः वाहनम. peacock जो है वो सरस्वती का, शारदा देवी का वाहन है कि नहीं? फोटो में दिखता है ना सरस्वती के साथ. Yes, दशहरा को we worship to that सरस्वती who is always with वाहन peacock. Yes, so यहाँ पे हम लिखेंगे अस्ति. सह शारदा देव्याः वाहनम अस्ति. And also our peacock is राष्ट्रीयः खगः इति प्रसिद्धः. राष्ट्रीयः मतलब नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. वेरी गुड. सो राष्ट्रीयः क्यों यूज करेंगे? बिकॉज मयूरः इज मैस्कुलाइन, सो वी हैव टू यूज राष्ट्रीयः. Okay, so we have seen 3 nibandhas also for lekhana kaushalam, writing skills. Shri Ganeshah, Mama Shala, Mayurah. Okay, now who will tell me all the answers for Shri Ganeshah? Yes, Shreya. Yes, ma'am. First one is Vidya. Second, Yachati. Third, Pita. Fourth, Very Asti. good. Fifth, Sri Ganesha. And fourth is Sri Ganesha. Very good, Shreya. Correct answer. Sorry, ma'am. Sri Ganesha. Shri Ganeshaya. Yes. Okay, next Vedika. Mama Shala. All the answers. Vedika is not audible. Okay, Mehak, tell me all answers for Mama Shala. Yes, ma'am. Mama पठामि नगरे विद्यन्ते छात्राः विद्यन्ते छात्राः मह्यम्. Okay, very good. Yes, Krishna. Tell me answer for third essay. Okay, Shreya, tell me answer for third essay. Yes, ma'am. Nrutyati, Ramaniyam, Akashe, Asti, Rastriyah. Very nice, perfect. Okay, students, so here we have completed 3 shlokas. Now your homework will be write down these 3 nibandhas in your notebook, and we will meet soon for remaining new topics. Okay, till then, all the best for your exams. Do well, and your paper should be presentable. You are writing a first semester paper of Sanskrit, so all the best to all of you. Thank you so much, and Punar Milamaha. And please do the homework of 3 nibandhas. Write down all the nibandhas in your notebook. Bye everyone. Punar Milamaha.